أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ پہلے سے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سبق نمبر 70، لیسن نمبر 70، اور آج ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے حمزۃ الوصل۔ ایک خالی الف ہوتا ہے جو دو لفظوں کے درمیان میں ہوتا ہے قرآن مجید میں، کسی وقت وہ پڑھا جاتا ہے، کسی وقت نہیں پڑھا جاتا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اور ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، آج دیکھیں گے حروف قمری کون سے ہیں اور حروف شمسی کون سے ہیں، حروف قمری کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور حروف شمسی کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اپنے اس لیکچر میں، اور ہم دوبارہ سے نون قطنی جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم دوبارہ، چونکہ اس میں حمزۃ الوصل بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم آج دوبارہ سے نون قطنی کو حمزۃ الوصل سمجھتے ہوئے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو بھی پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نون قطنی کے اندر حمزۃ الوصل کیسے استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی قرآن میں بھی پھر کس طرح سے حمزۃ الوصل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور کس طرح سے نون کو پڑھا جاتا ہے، وہ جو چھوٹا نون نون قطنی ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو، یہ تینوں چیزیں آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ایک شارٹ سی ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارے سامنے پیج کھل چکا ہے حروف شمسی، حروف قمری اور نون قطنی کا، اور اسی میں حمزۃ الوصل میں آپ کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جو مین ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی اور حمزۃ الوصل کا استعمال اور نون قطنی کا استعمال، ٹھیک ہے؟ اس لیے چونکہ یہاں پہ میں نون قطنی دوبارہ لائی ہوں، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے پڑھا چکی ہوں، لیکن ابھی دوبارہ یہاں پر پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو حروف شمسی اور حروف قمری ہم پڑھیں گے۔ اصل میں حروف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹوٹل جو حروف ہیں عربی کے وہ ہیں 28۔ 28 حروف کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے، 14 حروف جو ہیں وہ حروف قمری ہیں، اور 14 حروف جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں، اور ان کا نام بھی قمر اور شمس سے ان کا نام قمری اور شمسی رکھ دیا گیا ہے۔ اور قمری حروف وہ ہیں جن میں زبان، ان کی ادائیگی کے وقت زبان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جس طرح با، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، جیم، ہا، خا، حلق سے، عین، غین، فا، قوف، ٹھیک ہے؟ لیکن حروف شمسی وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان میں مین ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف قمری میں لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات ذہنی ہے، بات ذہن میں، کہ لام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، الف تو دونوں میں آئے گا، اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں والتین میں، والناس میں، اور ذالکل کتاب میں، یہ دیکھ رہے ہیں الف اور لام، ٹھیک ہے؟ والقمر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف جو ہے وہ تو شمسی اور قمری دونوں میں آتا ہے، لیکن جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ الف جو ہے وہ تو حروف شمسی اور قمری دونوں میں آئے گا، لیکن مین بات یہاں پر یہ ہے کہ لام کہاں پر پڑھا جانا ہے، اور لام پڑھا جائے گا حروف قمری میں، لام پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حروف شمسی اور حروف قمری کو اسی طرح سے الگ الگ جو ہے یاد کر لینے ہیں،
ठीक है, हरूफ कमरी 14 है, उनको याद कर लें, हरूफ शमसी 14 है, उनको याद कर लें। इनको याद करने की जरूरत है, फिर पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं पेश आएगी, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा और आप अच्छे तरीके से दूसरों को भी समझा सकेंगे। और एक चीज आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि हरूफ शमसी जहां जहां आए हैं वहां पर वो हरूफ शमसी मुशद्दद हैं, ठीक है, उनके ऊपर शद है, ये एक इनकी खास पहचान होगी। ठीक है, और जो हरूफ कमरी जहां पर है लाम के बाद हरफ कॉफ, ये देखें कॉफ, ठीक है, कहते हैं कि कमरी हरूफ वो होते हैं कि इन हरूफ में से, हरूफ कमरी में से जब कोई लफ्ज शुरू हो, स्टार्ट हो, तो उनसे उससे पहले जो है वो जो अलिफ और लाम होगा वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है, वो पढ़ा जाएगा अगर आगे या अलिफ और लाम के बाद हरफ जो है वो हरूफ कमरी में से है। और जिस तरह से अब आप देखें यहाँ पर अल किताब, अल किताब, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यह आ जाएगा ज़ालिकल किताब। ठीक है, अलिफ गिर जाएगा बीच में से चूंकि ये हमजातुल वसल है। जैसे यहां पर अब मैंने हमजातुल वसल को इस्तेमाल किया, मैंने इसको पीछे कोई लफ्ज नहीं है, कोई हरफ नहीं है, कुछ भी, सिर्फ हमजा से हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे अल खबीर और अल जमील। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि हरूफ कमरी में अलिफ और लाम पढ़ा जाता है और हरूफ शमसी में नहीं पढ़ा जाता। हरूफ शमसी जहां पर आते हैं जैसे रॉ, ये देखें हरूफ शमसी है रॉ, शीन, शीन, ता, ठीक है, और नून। ठीक है, समझ आ गई। और बस पहचान आपने ये रखनी है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको पहचान बता रही हूँ, पहचान आपने ये रखनी है कि यहाँ पर ये शद वाले होंगे। ठीक है, और इसमें से लाम, फिर लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, जब कोई शुरू में कोई आ जाएगा हर्फ या लफ्ज कोई पीछे होगा तो फिर अलिफ और लाम दोनों गिर जाएंगे और वाह को एकदम ता से मिला लेंगे। इस तरह जैसे यहाँ पर भी लाम नहीं पढ़ा जा रहा, अर्रहमान या हमजातुल वसल को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, समझ आ गई आपको, हरूफ कमरी और हरूफ शमसी में यही फर्क है। और अब हम पढ़ते हैं जी नून कुतनी में नून जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है और हमजातुल वसल कैसे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मैं पहले भी इसको पढ़ा चुकी हूँ, सबक नंबर 23, सबक नंबर 23 में मैं पढ़ा चुकी हूँ, नून कुतनी अच्छे तरीके से समझा के पढ़ा चुकी हूँ। और सबक नंबर लेसन नंबर 23 को आप निकाल के दोबारा वहां पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला उनके मजीद सीने और उनके जहन को अल्लाह ताला रोशन और मुनव्वर करे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर आपकी आवाज जो है तवा के ऊपर इसको पुर पढ़ना है, आपकी आवाज यहाँ पर बारीक आ रही है, इसलिए आज मैं उस चीज को सुधारते हुए भी इसको मैं दोबारा से इस सबक में हरूफ शमसी और कमरी और हमजातुल वसल में दोबारा इस चीज को लाई हूं, ताकि ये मैं बताऊं कि तो जहां पर आता है वो पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है। तो जब हम तो पढ़ते हैं, यहां भी देखें तो जो है ये हरूफ शमसी में भी है, तो जो है इसको पढ़ने के लिए हमारी जबान ऊपर को उठती है, ठीक है, तालू की तरफ जाती है, तो यहां पर हमने तो को पुर पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। तो यहां पर देखें ये था असल में नूहुन, नूहुन। आगे से अगर हम पढ़ते हैं नूहुन तो हम पढ़ेंगे इबनाहु, यहां मैं इस्तेमाल कर रही हूं किसको, हमजातुल वसल को। और अगर हम हमजातुल वसल नहीं पढ़ते, अगर हम नून कुतनी पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नूहु निबनाहु, नूहुन की एक जो पेश है वो नून के नीचे चली गई है, नून कुतनी बन गया है, उसके नीचे उसकी एक पेश जो है वो जेर बन के लग गई है। ठीक है, समझ आ गई, नूहु निबनाहु, यहां हमने नून कुतनी को पढ़ा। और अगर हम नून कुतनी को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नूहुन इबनाहु, नून कुतनी भी खत्म, अगर हम हमजातुल वसल को पढ़ते हैं तो नून कुतनी खत्म हो जाता है। और अगर हम हमजातुल वसल को नहीं पढ़ते, मिलाकर पढ़ते हैं, तो फिर हमजातुल वसल गिर जाता है, नून कुतनी पढ़ा जाता है। नून कुतनी भी गिर जाता है किस सूरत में, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि मिलाने की सूरत में नून कुतनी पढ़ा जाएगा, हमजातुल वसल गिर जाएगा, और अलग अलग पढ़ने की सूरत में नून कुतनी खत्म हो जाएगा और हमजातुल वसल पढ़ा जाएगा। बस इस चीज को आप ज़हन में रख लें। और तनवीन के बाद, अब तनवीन के बाद अगर हमजातुल वसल आ जाए यहां पर हो और उसके बाद आने वाला हरफ जो है वो साकिन हो, ये देखें जैसे साकिन नजर आ रहा है, तो तनवीन के नून को हम जेर देंगे, ये ठीक है, ये नून कुतनी है, ये तनवीन का नून है, इसको हम क्या करेंगे, जेर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमजातुल वसल फिर दरमियान में से गिर जाएगा, फिर बन जाएगा नूहुन बनाहू,
ठीक है, इसी को नून कुतनी कहते हैं। समझ आ गई आपको? आगे है, ये है लूती, लूती त्वा पुर पढ़ेंगे, लूती निल मुरसलीना। ठीक है, और अगर हम अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग दोनों को, तो हम लूत, हमने वक्त कर लिया लूत, फिर हम पढ़े अल मुरसलीन। ठीक है, हमजातुल वसल पढ़ा तो नून नहीं पढ़ा गया। अब हम नून को पढ़ेंगे तो फिर हमजातुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे लूती निल मुरसलीन, लूती निल मुरसलीन। ठीक है, समझ आ गई है? ये इतनी सी बात जो है ये यहाँ पर बस समझने वाली है। जब हमने मिलाकर पढ़ना है तो नून कुतनी पढ़ा जाएगा, और जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो नून कुतनी खत्म हो जाएगा, फिर हमजातुल वसल पढ़ा जाएगा। हमजातुल वसल का मतलब ये होता है कि ये इसके जरिए से हम अगला लफ्ज इसके साथ मिलाकर पढ़ लेते हैं। वसल का माना होता है मिलाना। ठीक है, समझ आ गई आपको? और ये नून कुतनी कुरान मजीद में 50 दफा जो है ये कुरान मजीद में नून कुतनी जो है ये इस्तेमाल हुआ है। ज़ाहिर है बार बार आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि इसको कैसे पढ़ना है। बाज लोग इस तरह मेन गलती ये करते हैं सूरत मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब आगे हमने पढ़ना है अल्लज़ी, लेकिन बाज लोग इसको शुरू करते हैं निल्लज़ी। तो जब हमने वक्फ कर लिया है तो फिर हम आगे नून से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त हमजातुल वसल काम आएगा, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे हमजातुल वसल को। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की? हमने नून कुतनी से अगला लफ्ज शुरू नहीं किया जा सकता। अगर हम पढ़ लें कदीर, फिर हम आगे पढ़े निल्लज़ी, नहीं, हमने कैसे पढ़ना है? कदीरू निल्लज़ी, नूहु निबनहु, लूती निल मुरसलीन, हमजातुल वसल गिर रहा है। ठीक है, आदनी निल्लती, अहदु निल्ला। अगर हम पढ़ लेते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, फिर आगे पढ़ना है अल्लाहुस समद। ठीक है, फिर नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हम पढ़े कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहुस समद। ठीक है, समझ आ गई? अब जमीआ निल्लज़ी, खैरुनी तोमा अन्ना, यहाँ पर तो को पुर भी पढ़ेंगे, इस पे कलकला भी होगा। खैरुनी तोमा अन्ना, मसलनिल कौमु, मसलनिल कौमु। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। आपने इस चीज को बस ज़हन में रखना है, हरूफ शम्सी और कमरी को अलग अलग याद कर लेना है। और हमजातुल वसल की मेन बात आपने जो याद रखनी है वो क्या है? वो है जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नून कुतनी पढ़ा जाएगा, जब अलग अलग दोनों लफ्जों को पढ़ेंगे तो फिर नून कुतनी नहीं पढ़ा जाएगा, फिर हमजातुल वसल से अगला लफ्ज पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये था आज के इस सबक में। इसको अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई कि इस चीज की हमें समझ नहीं आए, दोबारा समझा दे, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं दोबारा समझाने के लिए। और अगर किसी को कुछ और कोई सूरत पढ़नी हो, किसी चीज कोई लफ्ज पूछना हो, कोई चीज आपने ऐसी आयत जहां पर कोई कायदा लगा हुआ है, जहां पर कोई लफ्ज लिखा हुआ है, वो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उल अजीज जरूर उसको समझाऊंगी। और सिर्फ मेन मकसद है बेहतरीन सदका जारिया बनाने के लिए, अपने लिए, आप सबके लिए, कि जब हम दुनिया से चले भी जाएं तो हमारी ये छोटी सी जो कोशिश है इससे लोग फायदा उठाते रहें। और जहां पर कोई गलती हो, मेरी गलती हो, मैं कहीं पर कोई मिस्टेक कर जाऊं, तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, आपसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि चूंकि इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। और कुरान में नहीं होनी चाहिए, तजवीद समझाते हुए, कुरान समझाते हुए उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपने गलती की है। इंशाअल्लाह अजीज आपके बताई हुई गलती का, पॉइंट आउट किए हुए गलती का और आपके मशवरे का मैं खैर मकदम करूंगी इंशाअल्लाह अजीज, और आपका शुक्रिया अदा करूंगी। ठीक है जी, हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें दुआ में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। और इस चैनल की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चैनल को हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।